حجة لك أو عليك رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، میں نے آپ سے چند گزارشات مختصر اور پراسر کرنی ہے، بس آپ توجہ میری طرف. عظمت قرآن کریم کے حوالے سے پروگرام ہے. تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جو خاتم الکتب ہے، اور حضور پاک علیہ السلام وہ نبی ہیں جو خاتم الرسل ہے، اور ہم وہ امت ہیں جو خاتم الامم ہیں. اللہ نے خاتم النبیین پر خاتم الکتب کو اتارا اور خاتم الامم کو عطا فرمایا. ہم قرآن کریم کو اپنے سینے میں اٹھا کر اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے. ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ کتابوں کو سینے میں نہ رکھ سکے. اب ماشاءاللہ پوری لائن آپ کے سامنے ہے. حضرات علماء کرام نے دستار بندی کی ہے. کیا مطلب؟ کہ جس نبی پر قرآن کریم اترا انہوں نے اس کو اپنے سینے میں رکھا ہے. ان کی فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت میں یہ اللہ کے دربار میں آئیں گے تو رب کریم ان کو فرمائیں گے کہ قرآن کریم ویسے پڑھو جیسے دنیا میں خوبصورت پڑھا کرتے تھے. تم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ. جتنی آیات ہوں گی اتنی جنت کے درجے ہوں گے. قرآن کریم ختم ہوگا اور حافظ کا آخری مقام اس وقت موجود ہوگا. قرآن کریم کی فضیلت یہ ہے کہ جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے پڑھوایا ہے، ان والدین کو رب کریم ان پڑھنے کی وجہ سے وہ تاج عطا فرمائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ دیکھ کر اس کو رشک کرنا شروع کر دیں گے. آپ سمجھتے ہیں سورج کی روشنی کسے کہتے ہیں؟ سورج کی روشنی اسے کہتے ہیں کہ بندہ کمرے میں بند کیوں نہ ہو، سورج چڑھ جائے تو رضائی میں لپٹے ہوئے آدمی کو بھی دن اور رات کے موسم کا فرق سمجھ آ جاتا ہے. تو حافظ قرآن کے والد کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا وہ تاج ایسا ہوگا. حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحابی رسول ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو صوبہ سندھ سکھر محبوب گوٹھ میں جن کی قبر اقدس ہے، وہ ارشاد فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس. سورج اتنا خوبصورت نہیں ہوگا جتنی استاد کی روشنی خوبصورت ہوگی. اس کے لیے لفظ احسن بولا. احسن اس میں تفضیل ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ. اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. اتنی بڑی روشنی والا تاج اس والدین کے سینے پر اس والدین کے سر پر رکھ دیا جائے گا. اور تیسری بات اسی عنوان پہ کر رہا ہوں، آج آپ اور ہم جس دنیا سے گزر رہے ہیں ہم نے یہاں سے آخرت پہ منتقل ہونا ہے. جب ہم آخرت میں جائیں گے وہاں پر جو اللہ فیصلہ فرمائیں گے تو فیصلہ کیا ہوگا؟ جج بن کے فیصلہ ہوگا یا مالک کی عدالت کا فیصلہ ہوگا؟ تو رب نے خود فرمایا مالک یوم الدین. قاضی یوم الدین نہیں فرمایا کہ میں اس دن جج بن کے فیصلہ کروں گا، بلکہ مالک کی بات فرمائی اور یوم الدین فرمایا. یوم القیامہ بھی نہ فرمایا کہ دین کا ایک معنی برابری و مساوات بھی ہوتا ہے. فرمایا قیامت میں جو رب العزت برابری کا فیصلہ فرمائیں گے وہ مالک بن کر فرمائیں گے. مالک اور قاضی میں ایک فرق ہوتا ہے. مالک کی عدالت میں اور قاضی کی عدالت کے رول میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ قاضی کی عدالت میں سفارش نہیں چلتی، مالک کی عدالت میں سفارش چلتی ہے. قاضی پابند ہوتا ہے قانون کا. اگر کسی قاضی اور جج کے سامنے کوئی مجرم یہ کہہ دے کہ مجھ سے یہ مرڈر ہوا ہے، مجھ سے یہ قتل ہوا ہے، تو جج حکم دے گا ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، اس کو لٹکا دو. وہ جتنی معافی مانگے، وہ پاؤں پکڑے، وہ منت و ترلا کرے، جج معاف نہیں کرے گا. وہ کہے گا کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، میں اس قانون کا پابند ہوں، کیونکہ جج کے پاس اختیار محدود ہوتا ہے. لیکن جب عدالت مالک کی ہو پھر جج والے قانون نہیں لگتے، پھر آئین کی باتیں نہیں ہوتی. مالک مالک ہوتا ہے، وہ چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے. رب نے فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت میں مالک بن کے فیصلہ کروں گا. مالک کی عدالت میں سفارش چاہیے ہوتی ہے، سفارشی چاہیے ہوتا ہے. آج آپ حافظ بناؤ، عالم بناؤ،
दीनदार बनाओ अपनी औलाद को। हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार, सब बंदों पर जहन्नम वाजिब होगी। अशरतुम मिन अहली बैतिही, 10 बंदों का इख्तियार सिफारिश हाफिज को मिलेगा कि जिसको कहोगे अल्लाह जहन्नम से निकाल के जन्नत भेज देगा। ये क़यामत का सिफारिशी है, अल्लाह ने मालिक बन के फैसला करना है, तो इस सिफारिश की बुनियाद पे तेरी और मेरी आखिरत की निजात मुनहसिर है। अगर हम चाहते हैं हम अपनी आखिरत में निजात हासिल करें, आज सिफारिशी बनाओ। चौथी बात, आज लोग कहते हैं हम मौलवियों की इज्जतें करते हैं, क्या फायदा? मैंने कहा सुनो, तुम इज्जत करोगे तुम्हें दुनिया और आखिरत का फायदा। क्यों? यह सिफारिशी है अल्लाह की अदालत में। तुम्हें काम हो किसी प्रेसिडेंट के ऑफिस में, किसी पीएम के ऑफिस में, आप क्या करते हो? सिफारिशी ढूंढते हो, भाई सिफारिश करो मेरा काम करा दो। सिफारिशी को गाड़ी मुहैया आप करोगे, उसमें पेट्रोल आप डालोगे, रास्ते में खाने खिलाने की जरूरत पड़े खाना आपने खिलाना है, और वो उस जगह जाकर 2 बोल बोलेगा, आपका काम हो जाएगा। आप वापस छोड़ो भी आप, और उसकी जेब को गर्म भी आपने करना है। क्यों? तूने सिफारिश की है, मेरा काम बन गया है। और दुनिया की लालचों की सिफारिशों में बंदे यूं करते हैं, ये आखिरत के सिफारिशी है, ये अल्लाह के दरबार के सिफारिशी है। इनकी इज्जत, इनका इकराम, इनका एहतराम, इनकी जरूरियात का ख्याल, ये आपकी और मेरी दीनी जिम्मेदारी है, मिल्ली जिम्मेदारी है, अखलाक की जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है। ये हमारे सिफारिशी है। हम इनकी इज्जत करके, इस मदरसे की इमदाद करके, इस हाफिज व आलिम पे खर्च करके एहसान नहीं कर रहे, अपनी सिफारिश का हक अदा कर रहे हैं। इसलिए बात ज़हन से निकाल दें कि हम इनकी क्या कर रहे हैं। और 5वीं और आखिरी बात, तवज्जो, हुफ्फाज उलमा को अल्लाह ने डिसिप्लिन दिया है, हुफ्फाज उलमा को अल्लाह ने नज़्म और ज़ब्त दिया है। आज लोग कहते हैं मौलवियों में नज़्म और ज़ब्त कहाँ है? और तुमने मौलवियों का नज़्म और ज़ब्त देखा कहाँ है? मैं बाहर की बात नहीं, पाकिस्तान लेवल की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं, जुलूस होते हैं, जलसे होते हैं, स्ट्राइक, हड़तालें होती हैं, लोगों के कारोबार बंद होते हैं, लोगों की तिजारत पे फर्क आता है, मालो दौलत लुटती चली जाती है, इज्जत और नामूस को तार तार कर दिया जाता है। कहते हैं जुलूस था, मजमा था, उसमें नुकसान हो गया, ये हो गया, किसी एक के हाथ पे नहीं है। ओए तुमने दुनियादारों के जुलूस देखे हैं, दुनियादारों की हड़तालें देखी हैं, दुनियादारों की बाकी लड़ाइयां देखी हैं। आओ दीन के लिए जब उलमा निकले हैं, इनका डिसिप्लिन कितना है, इनका नज़्म ज़ब्त कितना है। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम 2 साल पहले कराची से मिलियन मार लेकर चले हैं, इस्लामाबाद की वादियों तक पहुंचे हैं, 1500 किलोमीटर का सफर तय किया है। किसी दुकान का शीशा नहीं टूटा, किसी रोड का गमला नहीं टूटा, किसी के कारोबार को 1 रुपए की तकलीफ और नुकसान नहीं मिला, न रोड ब्लॉक हुआ है, मेट्रो भी जारी थी, एम्बुलेंसेस भी जारी थी। एक ऐलान, आप न कहें सुभान अल्लाह, मुझे आपकी सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, मैं हक बात समझ के कहता हूँ। कोई रिप्लाई में कुछ भी कहे, लेकिन जो बात हक है तो उसकी तायद करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप में मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करते, फिर हाथ खड़ा करके तायद कीजिए, करनी चाहिए तायद या नहीं करनी चाहिए? तो मेरे दोस्तों, उलमा को अल्लाह ने नज़्म भी दिया है, ज़ब्त भी दिया है, उलमा को डिसिप्लिन भी दिया है। इसलिए उलमा के धरने में ना आपको कोई तकलीफ नजर आई थी, न किसी का माल दौलत, न किसी की दुकान, न किसी की तिजारत मुतासर हुई है। इसीलिए उलमा पर आप ज्यादा से ज्यादा अपने तन मन धन को लगाएं। सिर्फ चंदे की बात नहीं है, आप कहें मुझे मदरसे वालों ने कोई चंदे की अपील की बात की है, जी नहीं, मैं बात हक समझ के कह रहा हूं कि हम अपना तन मन धन यहां लगाएं। खुदा की कसम, क़यामत में अल्लाह इज्जतों के ताज पहनाएगा। मैं मना नहीं करता,
स्कूल कॉलेज की तालीम से आप पढ़नी चाहिए। हमने भी पढ़ी है और स्कूल कॉलेज में ऐसा पढ़ा है, मैं एक दिन के लिए स्टेकस नहीं हुआ, मैं एक दिन के लिए छुट्टी करने वाला, ये डिसिप्लिन की मुखालफत करने वाला नहीं था, लेकिन न मैंने दुनिया में चाहत की है कि मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए, न मैं आखिरत में मांग करता हूं मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए। मैं कहता हूं दुनिया में भी हम मस्जिद और मदरसे वाले बने, आखिरत में भी मस्जिद और मदरसे के नाम पे बुलाए मेरे दोस्तों, क्योंकि वो तालीम है जो आखिरत में फायदा देती है। मैं आपको पॉक स्टडी, आपको इंग्लिश, आपको मैथ, डबल मैथ स्टेट, फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री, आपको बायोलॉजी पढ़ने से मना नहीं करता, लेकिन अगर किसी की आंखें बंद हो, उसका धड़कता दिल बंद हो, धड़कती नब्जें बंद हो, चलती सांसें बंद हो, तो पॉक स्टडी नहीं पढ़ी जाती, बायोलॉजी नहीं पढ़ी जाती, फिजिक्स और मैथ नहीं पढ़ा जाता, डबल मैथ स्टेट और इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती। अमेरिका भी बंदा क्यों ना हो, वालिद फौत हो जाए तो फोन आएगा, कारी साहब बच्चों को कहे कुरान की तिलावत शुरू कर दे, सूरत यासीन पढ़ना शुरू कर दे। पता चला इस किताब की इज्जत और अजमत, वैल्यू, हैसियत और मर्तबा और रुतबा ये है कि आप इसको पढ़ोगे, इसका सवाब दुनिया में भी जाएगा, इसको चीर के कब्र तक भी जाएगा। तो अपने बच्चों को यह तालीम पढ़वाओ। आप स्कूल कॉलेज पढ़ाएं, वो जरूरत है, मैं 1 2 3 से मना नहीं करता, लेकिन वाहिद स्नैन सलासा अरबा सित्ता खमसा भी, ये भी आप पढ़ाएं, कुरान भी पढ़ाएं, सुन्नत भी पढ़ाएं। मैं इन वालिदैन से, इन बच्चों के पेरेंट्स से बड़े दस्त बरता और दर्दमंदाना अपील करूंगा, आज अरबी पढ़ी है, आज कलामुल्लाह को सीने में रखा है, कल इन्हें आलिम बनाए ताकि तुम्हें बता पाए कि अल्लाह का कुरान अरबी में हमें क्या कहता है। आप ये पढ़ाइए, आप डॉक्टर बनाइए, आप बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन आलिम बनाइए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह यही लेसन हमें देकर गए हैं, यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पर ये बताओ कहीं मुसलमान भी हो? भाई आज हम कैसे मुसलमान हैं? हर नमाज में अल्लाह से वादा करते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, न यहूद के रास्ते पे चलेंगे न ईसाई के रास्ते पे। है वादा या नहीं है? शक्ल भी ईसाई जैसी, लिबास भी यहूद जैसा, कैसा वादा? वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हो यहूद, ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए हुनूद। तो हम कहां बैठे? ईशा की नमाज में रात को सोते वक्त वित्र के अंदर अल्लाह से वादा करते हैं, वनखलउ वनत्रुकु मन यफजुरुक। क्या तर्जुमा है? उलमा से पूछ लेना। वनखलउ छोड़ते हैं, वनत्रुकु अलहदा होते हैं, किससे? मन यफजुरुक, जो शरीयत का नाफरमान है, अल्लाह जो तेरा नाफरमान है। यारियां उनके साथ, आने जाने उनके साथ, कारोबार उनके साथ, बिरादरी उनके साथ जो रब का नाफरमान है, फिर नमाज में तो झूठा वादा है ना। तो मेरे दोस्तों, ये तब आपको आपकी औलाद समझाएगी जिस वक्त आप अपनी औलादों को कुरान करीम के बाद उलूम की तरफ मुतवज्जे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक अपील कर रहा हूँ, आप में जितने लोग बैठे हैं इनके जेब में मोबाइल मौजूद है, आप एक कोशिश कीजिए, इस मोबाइल को दीन के लिए लगाइए, इस मोबाइल को शरीयत के लिए इस्तेमाल कीजिए, इस मोबाइल को अल्लाह की नाफरमानी में यूज न कीजिए। फिल्म स्टोर, ड्रामास, पता नहीं क्या से क्या गैर महरम की तस्वीरें ये न रखिए। दीनदारों को सुनिए, दीनदारों को फैलाइए। मेरी गुफ्तगू बराह रास्त नशर होती है, आप फेसबुक पर लिखे ना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, आपको 1 मिलियन से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स मिलेंगे। आप इसको आगे लेकर चले, ये अल्लाह का करम और फजल है। यूट्यूब पर आप मेरा नाम सर्च करें, आपको 1.5 लाख से अबव सब्सक्राइबर मिलेंगे। आप ये चीजें आगे फैलाएं। ये क्या हम इधर उधर की बातें फैलाते हैं? करेंगे ना दीन की चीजें, फैलाएंगे आगे। और मेरे जाने के बाद मौलाना को ये ना कहना कौन सा मौलवी से बुलाया था, इसने इंटरनेट की तरगीब दी है। मैंने तरगीब नहीं दी, तरतीब दी है। तरगीब और होती है, तरतीब और होती है। हजरत जी मौलाना इलियास दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्तूरात की जमात शुरू फरमाई तो किसी ने कहा आपने औरतों को घरों से निकाल दिया। फरमाया जी नहीं, औरतें घरों से पहले निकली थी, मैंने रुख बदला है, बाजार न जाओ अल्लाह के रास्ते में। तो भाई मैंने भी आपका रुख बदला है कि दुनियादारों को ना देखो, दीनदारों को देखो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश और खुरम रखे। सहाबा के मुनकर के जनाजों में शिरकत, माँ को गाली देने वाले को तो बंदा नहीं छोड़ता, और जो सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख हो उसके जनाजे में जाना किसने कहा?
हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के शोहर हजरत उस्मान का जनाजा, हजरत उस्मान गनी के बारे में हदीस पाक जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 में है। हुज़ूर पाक आए, चेहरे से कपड़ा हटाया, एक बंदे को देखा, हुज़ूर ने जनाजा छोड़ दिया। पूछा क्यों? फरमाया इन्नहु कान युबग़ज़ उस्मान फ़अबग़ज़हुल्लाह, मुझे अल्लाह ने मना फरमाया इससे बुग़्ज़ रखो, क्योंकि ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ता। ये हुज़ूर की बेटियों का शौहर है। अहले बैत का भी अजीम शख्सियत बनता है इस रिश्ते से, और सहाबा किराम में भी मकाम रखता है। जो पैगंबर के सहाबा और अहले बैत का मुनकिर है, हमारा इससे कोई जनाजों का वास्ता नहीं। हुजूर के सहाबा भी हमारे, हुजूर की अहले बैत भी हमारे। कोई सहाबा या नबी की अहले बैत या नबी के घराने और नबी के याराने पर बात करे और तू उसके जनाजे में जाए, जरा अपने ईमान को अपडेट कर लो। मुझे बताएं, कोई अहले बैत को गालियां दे आप जनाजा पढ़ोगे? सहाबा को गालियां दे पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे? अल्लाह के रसूल ने मना किया। लोग कहते हैं जी दुश्मन मरिए तो खुशी न करिए, सजना भी टूट जाना है। मैंने खुशी करने की बात तो नहीं की, मैंने जनाजे से रोका कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा और अहले बैत के मुनकर के जनाजे से रोका। 3 तलाक़ें हुज़ूर पाक हज़रत अबू बकर के दौर में एक होती थी, एक तसव्वुर होते थे। कुरान किसने कहा? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने 3 तलाक़ को एक कहा, एक हदीस नहीं। हज़रत अबू बकर ने 3 तलाक़ को एक कहा, एक हदीस नहीं। ये तो कुछ आम लोगों की बात हो रही थी कि कुछ लोगों तक जिन तक दीन नहीं पहुंचा था, वो हुजूर के दौर में 3 तलाक को एक समझते थे। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक को एक समझते थे। जब हजरत उमर का दौर आया, हजरत उमर ने जब इस शरीयत की बात को बतौर इस्लाम नाफिज किया तो लोगों को पता चल गया। अगर यही बात है कि हुजूर के दौर में होता था तो हुजूर ने तो नहीं किया। इस तरह मुते की बात है कि मुता कानतिल मुता तो फी आद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहद अबी बकर, हदीस पाक में जिनको नहीं पता था वो हुजूर के दौर में, हजरत अबू बकर के दौर पे ही करते रहे। हजरत उमर ने मना किया तो सबको पता चला, अच्छा अब कानून बन गया। भाई हुजूर के दौर में होता रहा, ये दलील नहीं है हुजूर ने किया है, ये दलील लानी है तो यूं लाए कि हुजूर ने फरमाया हो 3 तलाक दो तो एक होती है। भाई मैं किसी को 3 थप्पड़ मारूं और वो कहेगा 1 थप्पड़ लगा। किसी की दुकान से 3 समोसे उठाकर खा लो, वो कहेगा 1 प्लेट में खाया तो 1 है। भाई कैसी बात कर रहे हो? एक जगह बहस चल रही थी, थानेदार आ गया, उसने कहा मैं बहस नहीं करने दूंगा। तुम कहते हो हम बहस करेंगे, मैं मौलवियों को जूते मारूंगा। हमने कहा जी मारो, हमें 3 जूते मारना तो 3 गिनना, इसे 3 जूते मारना तो 1 गिनना। कहते क्यों? हमने कहा यही ऐसे साडा फड्डा है, ये तो हमारी लड़ाई है। हम कहते हैं 3-3 है, ये कहते हैं 3-1 है। जूते पड़े 3 तो कहते हैं 3 है, थप्पड़ पड़े 3 तो कहते हैं 3 है, 3 तलाक देते जो कहते हैं जी 1 है। खुदा दलाल, थोड़ी सी अक्ल वाली बात करें। ना हुजूर ने फरमाया 3-1 है, ना अबू बकर उमर ने फरमाया 3-1 है। उनके दौर में होता था। भाई दौर में कौन करता था ये तो बताए, ये तो आप नहीं बताए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी जिल्द 2 किताबुत तलाक में बाब मन अजाजत तलाक का सलास कहकर दलीलें लाई हैं कुरान और हदीस से कि जो 3 तलाक दे तो 3 हो जाती। और 3 तलाकों को 3 कुरान करीम ने कहा है। अत-तलाक मर्रतान, फरमाया जो 2 तलाकें हैं वो ये हैं, फ़इमसाकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, 2 तलाकों के बाद या रख सकते हो या छोड़ सकते हो। लेकिन 3 दे दी तो कुरान कहता है फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, 3 के बाद के लिए हलाल कोई नहीं। 3 तलाकों की बात कुरान कर रहा है, 3 तलाकों की बात सही बुखारी कर रही है, और तू क्या जी ऐसे होता था तो बात पूरी करे मेरे भाई। इस गए गुजरे दौर में बहुत से लोग और जमातें ऐसी हैं जो किसी गिरोह को अपनाना चाहते हैं और ऊपर चल के सिरात मुस्तकीम। पता नहीं मेरे भाई, मुझे आपके सवाल ही समझ नहीं आया। सिरात मुस्तकीम का माना ये है जो हुजूर ने दीन दिया है उस पर अमल करो, न उसको बढ़ाओ न उसको घटाओ। जो हुजूर ने दिया है उसी पर चलाओ, इसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। इलाही आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ऐ मेरे मौला इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, जो तशरीफ़ लाने का तशरीफ़ लाना कबूल फरमा। इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हज़रत मौलाना सलीम, हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम,
جتنے حضرات مفتیان کرام، جتنے حضرات جو ہمارے میزبان یہاں علماء، حفاظ، قراء جتنے بیٹھے، اللہ ان کی عمر میں، علم میں برکات عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ مجمع میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ان کے دل کی جائز حاجات اور خواہشات پوری فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کے بدلے ہمیں آخرت میں اجر اور کرم عطا فرما۔ اللہ جن بچوں نے قرآن پڑھا ان کا پڑھنا قبول فرما، جنہوں نے پڑھایا ہے پڑھانا قبول فرما، جن والدین و معاونین نے پڑھوایا ان کا پڑھوانا قبول فرما، کمی ہو گئی ہے پورا فرما، زیادتی ہو گئی ہے معاف فرما۔ اے میرے مولا ان تمام بچوں کو دین کی خدمت کے لیے دین کے داعی بننے میں قبول فرما۔ اللہ ہر مسلمان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے میرے مولا تمام علماء کرام کے نیک ارادوں میں برکات عطا فرما۔ اے میرے مولا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرما، صحابہ اور آل بیت کی ناموس کا تحفظ فرما۔ اے میرے مولا ہمیں سچے راستے پر کاربند فرما۔ اے اللہ جو دین کی محنت تبلیغ جماعت کی شکل میں کر رہے ہیں، حق کے مجاہدین کی شکل میں کر رہے ہیں، حق کی خانقاہوں کی شکل میں، حق کی مدارس اور مساجد کی شکل میں، حق کے سیاستدان علماء کی شکل میں، حق کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ ان تمام کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ان کے ارادوں میں برکات عطا فرما۔ اے اللہ گھروں میں اسپتالوں میں جو جہاں کہیں بیمار ہے صحت عطا فرما، فتین کے فتنے سے بچا، سازشی کی سازش سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا۔ اے میرے مولا فتین کے فتنے سمیت اے اللہ ساحرین کے سحر سے ہمیں بچا۔ اے اللہ حاسدین کی حسد سے ہمیں محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔